So class 10th students, today you are revising lesson 1, resources and development of geography. Shut up. The first lesson, from which you have completed the question answers. So what was the first question? What is a resource? Now you say the answer. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can termed as resource. For example, minerals, forests, soil, sun rays, building, roads, furniture, etc. सभी लोग लिखे थे ये आंसर. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ऐड कराया था. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे. You just wait 1 minute, only 1 minute. A strange name, Damon Salvatore. What is this? It's Damon Salvatore from TVD. What is this? You have to join the class with your correct name always. Your name should be here, your class, your roll number or admission number. These are required. No, you should not waste the time of the class. Have you understood the meaning of this definition? Everything which are available in our surrounding, whether it is man-made or natural, whatever. In our surrounding, there may be presence of air, sunlight, there may be the presence of various types of man-made goods like furniture, bed, table, chair, etc., books. Okay, so all these things which are available in our surrounding, whether it is natural or man-made, if they have the quality to fulfill our needs, is termed as resources. And other qualities are technologically accessible. That means we should possess the technological know-how to utilize them. Economically feasible means it should be affordable according to our capacity, economic capacity. And culturally acceptable means demand of the people according to their culture or need. What this diagram shows? What is the meaning of this diagram? Interdependence of relationship between nature, technology, and institution. In the interdependency, and always human being is at the center. Human being is the most important resource among all the other resources, right? And human beings are interacting with the physical environment, with technology and the institution to make the primary product or the raw materials more useful after manufacturing. And then we satisfy our needs and make our life more comfortable. So human being is the most important resource because it is the human being who find use for each and every things available in our surrounding. And the human beings modify the things, make them more useful. So broadly, resources are classified into natural and human, right?
Natural means, again, you can classify it in renewable and non-renewable. You will explain this with the help of example. Give one example of renewable resource. Solar energy, wind energy. Ma'am, wind energy, solar energy. हाँ ठीक है. और non-renewable energy. Ma'am, fossil fuels. Petroleum. Okay. Then in renewable, in renewable source, again you can divide it into two: continuous or flow, which are available in continuous manner like wind and water, and biological. Biological, natural vegetation and wildlife. These are the two: natural vegetation and wildlife. So every time you have to give some examples. In non-renewable, there are two types. Recyclable, like the metallic minerals, you can reuse them, so it is known as recyclable. And then non-recyclable, like fossil fuels. And among this resource, the human resource, structures and institutions, and quantity and quality. The structures and institution means we have various types of institutions like factories, industries, research centers, etc., through which we modify the things or find some good use for the resources. And then this is quantity and quality. What is the quantity means what is the total number of population, and quality, what is the quality of the people, right? So quantity and quality both matters. Quality matters more. Human being starts all types of industries, institutions, or you can say manufacturing centers, workshops, smaller scale or larger scale industries, etc. And quantity of human being, you can say that it is the number of people. So quantity can indicate towards the labor force, workforce. And quality, how the people are equipped with training, education, etc. So this is the quality. Someone was saying something. Now you can say. No. In revision, you should revise that portion also. You will read all these classifications. These are quite easy, and one of this can be revised again. This one, on the basis of status of development. ये याद किए हो तुम लोग? बताओ. On the basis of status of development. What is the potential resource? Read your answer. Resources which are Ma'am, resources which are found in Resources a which are region but found have in not been but utilized. have not been For example, utilized the due to lack western of part capital or of other India, reasons. like Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but these have not been developed properly. That means there is not left to use in future. So it is known as potential resource. We are already using the solar energy and wind energy, but there is lot left to use in future. So it is known as potential energy, potential resource. That means we have the technology, we are using it, but not well used. Second, developed resource. It is clear by resources Which are surveyed and which their are quantity their and quality and quantity determined have for been determined for utilization. utilization. Development The of development resources of depends on resources technology depends and on level of technology their and feasibility. development of, For for example, coal example, mines the of coal mines of Ranning Raniganj and Jharia, etc. ठीक है. The resources which are developed or which are already in our use, we are utilizing them with the help of our present economic capacity and the technology, skill, etc. So the resources which are already in use and in the process of development are known as developed resources. You can give some examples.
of the this type of resources which are already in use. Then stock. Materials in the environment. हाँ बोलो. These are the materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs but cannot be used as a human being. Do not have the appropriate technology to convert them into usable form. including among For example, water is a compound of two inflammable gases. Harsh Kumar, you were reading just now. Yes, ma'am. हाँ हर्ष एक बार और पढ़ो. Stock. These are the materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs but cannot be used as the human being do not have the appropriate technology to convert them into usable form. For example, water is a compound of two inflammable gases. That is, compound do not have the required technology to use them as a resource of energy, ma'am. ठीक है, इससे क्या मतलब समझ में आया कि उन सारी चीजों को हम स्टॉक कहते हैं जो हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, इसलिए उसे हम यूज नहीं कर रहे. जैसे वाटर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं यूज कर रहे हैं कि उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करके और उसको एनर्जी रिसोर्स की तरह यूज करें, वो हम नहीं कर रहे हैं अभी. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर क्या है, एक स्टॉक है. लेकिन वाटर को ही अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जैसे हम हाइडल पावर डेवलप कर रहे हैं, हम उसे इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर क्या है, एक डेवलप्ड रिसोर्स है. लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करके उसे रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, स्टॉक है, क्योंकि वो टेक्निकल नो हाउ हमारे पास नहीं है. अब आ जाइए तीसरा, ये रिजर्व. These are the Reserves part, are the part of the developed development resource resources which are left to meet left the unused future to meet the requirement. future We requirement. already possess the Already possess the technology to technology to use them. For For example, example, river water water and can be used dams to is part generate of forest reserves, hydroelectricity, etc. but presently it is being utilized to water in the dams, etc. limited. ठीक है ना. हरे राम, एक बार तुम भी पढ़ दो जल्दी से, दो आदमी एक साथ नहीं पढ़ना, ठीक है ना. What is reserve? reserves are the substance of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting further requirements. River water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the further future. हाँ, फ्यूचर. देखो, रिजर्व का सिंपली मतलब इतना ही समझो कि रिसोर्स के एक हिस्से को हम क्या करते हैं, रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं कि वो हम फ्यूचर में उसे यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी सारा यूज करके खत्म तो नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना है. तो फ्यूचर में जो यूज करेंगे उसी को कहते हैं रिजर्व. बस सिंपल यही है मीनिंग इसका, है ना. इसके लिए हमारे पास टेक्निकल नो हाउ सब कुछ है, हम उसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोर्शन को हमने छोड़ रखा है फ्यूचर के लिए, तो यही हो गया रिजर्व. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. रिवर वाटर हमारे पास बहुत है और हम रिवर वाटर का अभी बहुत कम ही पोर्शन यूज कर रहे हैं, है ना. और फ्यूचर में हम जो यूज करेंगे तो वो हमारे लिए रिजर्व हो गया, रिवर वाटर का वो हिस्सा. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in future. डैम का वाटर को तो हम यूज कर ही भी रहे हैं, जैसे आपको हाइडल पावर ये सब के लिए यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा है. फिर भी वाटर का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, रिजर्व में, जो कि हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं. Which can be used in future.
अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिख रहा है ना, ये टॉपिक, इसको तुम कर लेना बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये ना तुम्हारे दोनों सब्जेक्ट में आएगा, लेसन 1 इकोनॉमिक्स में भी आएगा और इसमें भी, ज्योग्राफी में भी। ठीक है, अब कोई दूसरा बच्चा, ये उत्कर्ष और उसके अलावे, हरे राम के अलावे कोई और बच्चे बोलिए तो। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स? Sustainable development means the development that takes place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of future generation. ऐसे ही है, उसमें भी, इकोनॉमिक्स में भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि हम लोग अपने प्रेजेंट नीड को फुलफिल करें विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट or without damaging that resource, and we have to keep the resources for our future generations. तो इसमें क्या क्या बातें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलप करना कि उसका कुछ पार्ट हम लोग भी इस्तेमाल करें, जो प्रेजेंट लोग हैं वो भी यूज करें, एनवायरनमेंट को किसी तरह से पॉल्यूट भी ना करें, है ना, इतना वाइजली यूज करें, इतना जुडिशियसली यूज करें कि एनवायरनमेंट किसी तरह से डिग्रेडेड ना हो, ना ही एयर पॉल्यूशन हो, ना वाटर पॉल्यूशन, ना लैंड डिग्रेडेशन, कुछ भी नहीं हो, और सब कुछ को हम बचा के रखें पूरे एनवायरनमेंट को, और अपने नीड को पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखें। तो इस तरह से अगर रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाए तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, है ना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, रिसोर्स और पॉपुलेशन में कोई बैलेंस ही नहीं रहेगा। अगर जो पॉपुलेशन है वो एकदम रेकलेसली यूज करे रिसोर्सेज का, तो रिसोर्स सारे बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, इस पैराग्राफ से यहाँ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में देखें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द 3 बैड इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अगर रिसोर्स को एक्सेस डेवलप करें, एक्सेस यूटिलाइज करें, तो क्या क्या बैड इम्पैक्ट होते हैं। तो तुम ये आंसर को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। कोमल, रीडिंग करो तो। What are the bad impacts of indiscriminate use of resources? हाँ, पढ़ो, अमृत गौतम पढ़ो। Depletion of resources for satisfying the greed of few individual. Second point, accumulation of resources in few hands, which divide the society into rich and poor. Third point, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, and land degradation. ठीक है ना। तो इसमें 3 डिफरेंट पॉइंट है। एक तो है कि अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बहुत अंधाधुंध अगर इस्तेमाल करते गए, अंधाधुंध फॉरेस्ट को काटते गए, एक्सेस मिनरल को यूज करते गए, कोई केयरफुलनेस नहीं है, बिल्कुल अनजुडिशियसली यूज कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो सबसे तो पहली बात क्या होगी कि डिप्लीशन हो जाएगा, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो समाप्त होने लगेंगे, है ना। और कुछ ही लोग के लिए ये समाप्त हो जाएगा, और बाकी लोग फिर क्या करेंगे, उनके लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, है ना। जैसे तुमको ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताया गया था ना कि जब सॉइल का हमें एक्सेस यूटिलाइजेशन करने लगे, एग्रीकल्चर में सॉइल का एक्सेस यूज करने लगे, बहुत फर्टिलाइजर देके, इरिगेशन दे करके और बहुत प्रोडक्शन लेने लगे, तो सॉइल का क्या हालत, उसकी क्या हालत हुई सॉइल की कि वो डिग्रेड होने लगा, सॉइल इनफर्टाइल होने लगा। तो एक एग्जांपल हुआ ये। इसी तरह से कोई भी रिसोर्स जिसको हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे तो वो क्या होगा, समाप्त होने लगेगा, उसका डिप्लीशन होने लगेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया स्ट्रेट। और सेकंड क्या पॉइंट है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। क्या होता है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे तुम देखो तो जो रिच कंट्रीज है ना वही ज्यादा यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज का, और इस तरह से पूरा वर्ल्ड ही रिच और पुअर में डिवाइडेड हो गया है।
एक कंट्री के अंदर भी देखो तो कंट्री का सोसाइटी जो है रिच और पुअर में डिवाइडेड है। पूरे ग्लोबल लेवल में भी बहुत सारे कंट्रीज रिच कंट्री हैं तो बहुत सारे कंट्री पुअर कंट्री हैं। इस तरह से रिच कंट्रीज का नंबर कम है, पुअर कंट्रीज के नंबर ज्यादा है। तो ये इसी को कहते हैं रिच एंड पुअर, डिवीजन ऑफ सोसाइटी और द कंट्री और द वर्ल्ड इनटू रिच एंड पुअर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरा पॉइंट में क्या है कि कितने तरह का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका सारा तुम एग्जांपल दोगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब रिजल्ट, बैड रिजल्ट सामने आता है ना, अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करें तो। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड कॉलम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कर ही लिए। तो वर्ल्ड में क्या किस चीज की जरूरत है? एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। पूरी दुनिया में शांति तभी रहेगी जब रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, सभी कंट्री के पास सब कुछ एक लिमिटेड मैनर में हो, इक्वली हो, तब क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी सबकी और ग्लोबल पीस भी बना रहेगा, है ना। नहीं तो क्या होता है, एक सोसाइटी के अंदर ही अपने आसपास ही देखो, जो पुअर पीपल है वो क्या करने लगते हैं, चाहे तो वो स्टार्व करेंगे या फिर क्रिमिनल एटीट्यूड में आ आएंगे ना, जिनके पास कुछ नहीं है तो इसलिए सोसाइटी में पीस रहे, इसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं, जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब कि गरीब लोगों के पास भी फूड पहुंचना चाहिए। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इस तरह का भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि why resource planning is essential? तो तुम क्या क्या रीजनिंग दोगे, बताओ। दिव्या, तुम लोग लिखे हो व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल, किस कौन कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे इसमें कि रिसोर्स को बहुत प्लान्ड मैनर में डेवलप करना क्यों जरूरी है? एक एक पॉइंट बोलो वन बाय वन। मैम, because it helps in sustainable development of resource. हाँ, if we are doing resource planning, it will lead to sustainable development of resource. ठीक है, और बताओ और क्या हो सकता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो सारी बात ही आ गई, है ना। यस मैम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर वर्ड यूज कर दिए तब तो उसके अंदर सारी बात आ गई कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है, रिच एंड पुअर, हाँ रिच और पुअर दूसरे का भी नहीं बटेगा अगर हम प्लान्ड मैनर में यूज करते हैं, है ना, और रिसोर्स का डिप्लीशन भी नहीं होगा। मैम इसका आप लिखवाई है मैम, बस एक ही लाइन लिखवाई थी। अच्छा, लिखाया हुआ आंसर पढ़ो तो क्या लिखवाए थे? Resource planning is a technique or skill for proper utilization of resource. It helps in sustainable development of resource. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सस्टेनेबल एक वर्ड ही ऐसा है ना जिसमें कई सारी बातें तुमको एक साथ आ गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अपने प्रेजेंट नीड को भी पूरा करना, रिसोर्सेज को लिमिटेड मैनर में यूज करना, फ्यूचर के लिए बचा के रखना और कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं हो, ये सारी बातें आ गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। Yes. ठीक है ना, तो अगर इलेबोरेट करना होगा तो सस्टेनेबल को इलेबोरेट करोगे कि सस्टेनेबल का क्या मतलब होगा। ठीक है, अनुप्रिया, आशुतोष, तुम लोग नोट्स बनाए हो कि नहीं? दीक्षा, दिव्यम, हरे राम, सारा लिखे हो? मान्या तो लिखती है ना? मुकुल? यस मैम, सारा लिखे हुए हैं मैम। प्रतीक, प्रकाश, ऋषिराज लिखे हो? यस मैम, और क्वेश्चन पूछिए, सारा लिखे। हाँ, संमित्रा, शौर्य सिन्हा, शौर्य उपमन्यु, सब लिखो ना तुम लोग। पढ़ दे क्या? दोनों श्रेया, हाँ पढ़ो फिर से। हरे राम। Ma'am, resource planning is a technique or skill for proper utilization of resource. It helps in sustainable development of resource.
ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, ये तो बस एक बार अपने रीडिंग करके रख लेना, ये इतना एग्जाम में तो आता नहीं है ज्यादा, तो ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है। वैसे इसको रीडिंग कर लेना। तुम बताओ रियो डी जेनेरो अर्थ समिट कब हुआ था, कौन से ईयर में? 1922। हाँ, मैम 1992 1992 जून 1992। 1992. वर्ल्ड के कितने कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था? 100 कंट्रीज। 100 कंट्रीज। और ये रियो डी जेनेरो कहाँ पर लोकेटेड है बताओ? ये बहुत बड़ा ब्राजील में। हाँ, ये बहुत ब्राजील बड़ा में। city है, ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है ना। ये पोर्ट सिटी भी है, सी पोर्ट भी है मतलब, और कमर्शियल टाउन भी है। ये सबमिट करने का, इस तरह का बहुत बड़ा सा कॉन्फ्रेंस करने का क्या एम था, क्या पर्पस था? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है ना। फिर पूरी दुनिया में सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, है ना। जैसे कहीं बहुत बीमारी नहीं फैले, कहीं बहुत गरीब अमीर का फर्क नहीं रहे, तो इस तरह से इन सारी चीजों को दूर करने के लिए ये हुआ था। मेनली तो हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। और जब ये कॉन्फ्रेंस हो गया तो उसमें कितने पॉइंट्स तैयार हुए? 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। इसमें 21 पॉइंट्स ऐसे एजेंडा में तैयार हुए जिसको कि 21st सेंचुरी में पूरा करना था। अभी वही चल रहा है ना, कौन सा सेंचुरी चल रहा है बताओ? 21st century। 21st century. तो 21st सेंचुरी में इनको अपने गोल को पूरा करना है कि पूरे दुनिया में रिच एंड पुअर का डिफरेंस कम हो जाए, है ना। जहाँ पर कुछ कंट्रीज जो है ना वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है वही लोग ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ग्लोबल पॉल्यूशन, तो उनको अपना पॉल्यूशन कम करना है, ठीक है। किसी देश में बहुत स्टार्वेशन है, खाने पीने की कमी है, भूखमरी है, तो उसको दूर करना है, कहीं बीमारी फैली हुई है उसे दूर करना है, ये सब इसमें पॉइंट है। Yes, ma'am. तो अब ना तुम लोग इस पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि इंडिया में ही अगर देखें तो जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ रिसोर्स में कोई खास स्टेट्स ज्यादा ये है रिच हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश वाटर और फॉरेस्ट के लिए ज्यादा रिच है ना। राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। तो राजस्थान में फर्टाइल सॉइल नहीं है क्योंकि वेस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट, तो फर्टाइल सॉइल की कमी है, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी में राजस्थान बहुत आगे है। तो हर स्टेट जो है ना वो किसी न किसी चीज में ज्यादा रिच है और बाकी चीज में पुअर है। लद्दाख जो है वो आइसोलेटेड रहा है बहुत समय से, तो वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ही यूनिक है, वहाँ का कल्चरल हेरिटेज। तो इस तरह से देखते हैं कि जब सारे स्टेट्स का स्टडी कर लिए कि कौन सा स्टेट किस रिसोर्स में रिच है और किस में पुअर है, तो उसी हिसाब से हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं पूरे कंट्री के लिए कि पूरे कंट्री में एक बैलेंस्ड वे में रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे हो और हर तरफ के नीड को पूरा कर सकें। ये जो है ना 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ये लॉन्ग आंसर में हमेशा आता है, तो इसको तो बिल्कुल याद कर लेना है समझने के बाद। रीडिंग कर दें? समझे हुए हो ना, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई और बच्चा रीडिंग करो, उत्कर्ष और इन लोग के अलावे प्रतीक, प्रकाश, दिव्यम, कोई और बच्चे रीडिंग करो। Yes, ma'am. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources.
Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plan. Matching the resource development plans with overall national development plans. India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. ठीक है, The availability of अच्छा आगे पढ़ो, ठीक है. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. But mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed. ठीक है. चलो अब ये बताओ कि इसका मीनिंग तो सब लोग समझ गए ना कि रिसोर्स प्लानिंग के 3 प्रोसेसेस क्या क्या है. पहले स्टेज में क्या करते हैं, किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए उसका फर्स्ट स्टेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी. हाँ, मतलब रिसोर्स को रिकॉग्नाइज करना, पहले पहचान करना उसकी, ठीक है. और पहचान करने का मतलब क्या होता है कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है. जैसे झारखंड में देखें तो फॉरेस्ट रिसोर्स है, मिनरल्स हैं. बिहार में देखो तो फर्टाइल सॉइल है, वाटर रिसोर्स है. पंजाब हरियाणा में भी बहुत है फर्टाइल सॉइल और वाटर रिसोर्स ये सब. तो उस हिसाब से हम वहाँ का डेवलपमेंट करते हैं. इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. तो पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए. तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा कि कौन सा रिसोर्स है, कितने क्वांटिटी क्वालिटी में है, तो उसके लिए सर्वेइंग करते हैं. सर्वे करने से लैंड सर्वे इसको कहा जाता है. मतलब सर्वेइंग में 2 तरह का होता है. एक को कहते हैं लैंड सर्वे और दूसरे को कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे. जब लैंड के ऊपर एग्रीकल्चरल लैंड या फॉरेस्ट ये सब का सर्वे करना है तो उसको लैंड सर्वे कहते हैं. लेकिन अगर मिनरल का करना है तो उसको जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं. ठीक है ना. तो सर्वे करने के बाद मैप के ऊपर उसको डिपिक्ट करते हैं कि बिहार में कहाँ पर है. हाँ, फिर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी का एस्टिमेशन करते हैं कि वो किस क्वालिटी का है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है. क्वालिटी से एग्जांपल तुमको हम देके बताए थे. जैसे फॉरेस्ट है तो देखेंगे ना कि ये कौन सा फॉरेस्ट है, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट है कि हार्डवुड फॉरेस्ट है, मानसून फॉरेस्ट है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट है. तो वो हो गया उसका क्वालिटी. और क्वांटिटी कितनी है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है. मिनरल के बारे में भी यही बात है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखते हैं. तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को पहले पॉइंट में रखा गया है. ठीक है. और दूसरे में क्या करते हैं, उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं. तो यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या लगाते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ह्यूमन स्किल और इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेते हैं. मतलब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ये सब का हेल्प लेते हैं. तो ये दूसरा हो गया जिसमें हम ऑलरेडी उसको डेवलप कर रहे हैं. और तीसरे में हम किस पॉइंट को रखे हैं कि इन सभी के लिए ऊपर ये जो दोनों पॉइंट देख रहे हो वो सब किस बात को ध्यान में रख के करते हैं कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. नेशनल डेवलपमेंट प्लान से इसको मैच करके हम शुरू करते हैं किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट. ठीक है. अब एक आंसर तुम अपनी कॉपी से पढ़ के सुनाओ कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर क्या लिखे हो आंसर. कोई भी बच्चा पढ़ो. मैम क्या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखे हो. चेक करो उत्कर्ष. यस मैम. हाँ, तो आंसर पढ़ के सुनाइए. क्वेश्चन पढ़िए पहले. व्हाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज एसेंशियल. हाँ, इसमें तुमको अपना रीजनिंग देना है कि रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है ना. चल बोलो. Resource conservation is essential because resources are available in limited quantity. We have to conserve them for our future generation. Excess use of resources will lead to socio-economic differences in the society. Excess use of resources will also lead to ecological problems such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. Resources are unevenly distributed and we have to fulfill its requirement. एक ये भी पॉइंट लिखो ना कि resources are unevenly distributed.
क्योंकि हर एक रिसोर्स Yes, हर ma'am. जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है और हमें सारे रीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए भी रिसोर्स को हम प्लानिंग करना जरूरी है कि हर तरफ के नीड को कैसे पूरा कर सकेंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे हो बताओ। And what is the thought of Mahatma Gandhi regarding resource conservation? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ो तो। Ma'am, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. There is enough for everyone's need, but not for anybody's greed. He placed greedy and selfish person as and the exploitative nature of the modern society as the root cause of resource depletion at global level. He was against mass production and wanted to replace it by masses. चलो